you know, before we start proving this Holder's inequality, you must need to know, okay, what do we mean by this quantity? I've already told, okay, this represents the pth norm of x. I runs from 1 to infinity, power p, and all of this power 1 by p. If you find x r y with q, that means the sum is running from 1 to infinity, and then we have xi to the q, all of this power 1 by q. मतलब कहने का ये है कि p नॉर्म q नॉर्म कोई भी नॉर्म हो तो वो यहाँ r आ जाएगा, तो इस जगह पर r आ जाएगा. So you will get into that. ठीक. Now I will formulate the Holder's inequality, or I will state the Holder's inequality. So the Holder's inequality starts with assuming the real numbers p and q. So it says let p is between 1 and less than infinity, or it's lying in the interval 1 to 1 included to infinity, and q is such that q is inside 1 to, so it says, you know, plus infinity here, but like p and q are greater than 1, so you assume that, you know, I will write this in this way. So p and q are, p is greater than equal to 1, q is greater than 1. So these assumptions are crucial. So even let's assume this further, you know, if p and q are greater than 1, and let x be a sequence which is x sub n running in n, and I have another sequence which is y, and this is y sub n, where n is running inside n. Be scalar sequences, ये हमारे पास दो स्केलर सीक्वेंसेस हैं, right? Then so we are proving this version. Then we have n from 1 to infinity of xn multiplied by yn. It is less than equal to, so we should have written it in this form: n equal to 1 to infinity xn power p, all of this power 1 by p, and then n equal to 1 to infinity yn power q, all of this 1 by q. Or you can write it, because this is the one norm of this product x, so it's a one norm of x and y. It is one norm which is less than equal to the pth norm of this, p norm of this x, and the q norm of this y. So we have to develop this. In other words, we have to prove this inequality at the end of the day. So how we will start? So we will start with, you know, certain assumptions. See, let me assume some of the things. So let's start the proof. I am defining two new vectors, u equal to x upon norm of x, and obviously this is p norm of x, and I am defining another vector which is y upon q norm, or y, the q norm of y, right? So ये x सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है x1 x2 इस तरह से है, और इसी तरीके से हमारे पास y दूसरी सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है y1 y2 y3 इस तरह से इसके कंपोनेंट है. इसी तरीके से u1 जो कंपोनेंट बनेगा, हमारे u के जो कंपोनेंट बनेंगे वो ये बनेंगे x1 अपॉन, यानी u1 हमारा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x p हो जाएगा. फिर इसी तरीके से u2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x2 अपॉन नॉर्म ऑफ दिस x p,
सो इस तरीके से यानी ये यू आईज और वी आईज भी आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द पी नॉर्म ऑफ यू? कैन यू गाइज टेल मी? यही होगा. तो ये नीचे जो ये पड़ा हुआ है ना, ये नंबर है. सो वी कैन कीप इट आउटसाइड, यू नो, एक्स का पी नॉर्म, फिर ये एक्स का पी नॉर्म बन जाएगा एंड अल्टीमेटली दे विल कैंसिल आउट. तो क्या बच जाएगा? 1. आप देख सकते हैं ये वेक्टर है, उसको उसी के नॉर्म से डिफाइन किया हुआ है, तो इसका नए का नाम 1 होना चाहिए. इसी तरीके से इसका नॉर्म भी 1 हो जाएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये 1 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, आई कैन टेक दिस एंड आई कैन राइट दिस के दिस इज लेस देन यू आई टाइम्स वी आई. अच्छा, अब हम यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक इनइक्वालिटी प्रूव की थी, यंग्स इनइक्वालिटी. अगर यंग्स इनइक्वालिटी लगाएं तो ये यू आई पावर पी डिवाइड बाय पी हो जाएगा, प्लस वी आई पावर क्यू डिवाइड बाय क्यू हो जाएगा. और अगर आप दोनों साइड सम लगाएं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये i इक्वल टू 1 to n हो जाएगा. और ये आएगा यू आई वी आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ इस जगह पर भी सम लगेगा, 1 अपॉन पी को बाहर रखें भले आप, समेशन i इक्वल टू 1 to n ऑफ यू आई पावर पी प्लस 1 अपॉन क्यू रखें, यहाँ सम लगेगा i इक्वल टू 1 to n तो नहीं है, ये इन्फिनिट सम है. सो दिस इज इन्फिनिट सम वी आई पावर क्यू. अच्छा, अब ये वाली जो चीज है, चलें एक और स्टेप भी मैं लिख देता हूं. ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको आप ये अंदर वाला एक ही कंपोनेंट अगर कंसीडर करें तो ये 1 नॉर्म है बेसिकली यूवी का. 1 नॉर्म. अब 1 नॉर्म यूवी का लिखे, यानी यू और वी के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके यूवी प्रोडक्ट बनाए, फिर 1 नॉर्म लिखे, तो ये आएगा एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस के हिसाब से, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पी. अच्छा, अब ये वाली जो चीज है इसको देखें जरा, ये इसके ऊपर 1 अपॉन पी पावर नहीं है, ठीक है ना. ऊपर चले जाएं, जब मैंने यहां पर एक चीज लिखी थी शुरू में, मैंने कहा था कि x का पीथ नॉर्म जो है ये इसके बराबर है. लेकिन अगर दोनों साइड पावर p ली जाए, x का p नॉर्म पावर p लिखी जाए, तो ये 1 अपॉन पी हट जाएगा. तो अगर 1 अपॉन पी हट जाता है तो पावर p आएगा. तो आप इसी को लगाते हुए, जैसे वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात होती है, तो ये बेसिकली u का p नॉर्म है और पावर p है, प्लस 1 अपॉन q, ये v का q नॉर्म है, पावर q. अच्छा, ऊपर हमने अज्यूम किया हुआ है, इसमें ये अजम्पशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी कि होल्डर इनइक्वालिटी में कि p और 1 अपॉन p और 1 अपॉन q का सम 1 होता है. यानी ओके, आई शुड राइट दिस कि 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q ये 1 होगा. ये अजम्पशन क्रूशल है और लाजमी होगी इसके अंदर. तो अब यहाँ पर आ जाएं. अब क्योंकि ये नॉर्म हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऊपर ले आए, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पर मैंने इसको बताया, यहाँ पर इसको बताया, ये 1 है, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि यू वी की प्रोडक्ट का जो 1 नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू है. लेकिन हमें पता है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू 1 के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यू वी का 1 नॉर्म हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा. अब ये जो चीज मैंने डेवलप की है, इसको मैं अब यूज करने वाला हूँ अभी. अच्छा, अब मुझे इनइक्वालिटी प्रूव कौन सी करनी थी, मैं बस अब उसी पर काम करता हूँ, ये वाली. अब मैं इस लेफ्ट साइड को उठा के इस राइट में कन्वर्ट करता हूँ, बस इसी के ऊपर, और ये जो अभी इनइक्वालिटी हमने बनाई है इसका इस्तेमाल करूंगा. अच्छा, अब ये उठाता हूं मैं एक्स वाई का 1 नॉर्म, मैं इसको क्या करता हूँ, x को मल्टीप्लाई भी करता हूं x के p नॉर्म से, और इस x को डिवाइड भी करता हूं x के p नॉर्म से, ठीक है. और इसी तरीके से ये जो y है इसके साथ भी ये काम करता हूं, y के साथ मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं y का p नॉर्म, सॉरी आई शुड कीप दिस p, सॉरी q नॉर्म, और इसके नीचे यहां डिवाइड भी कर देता हूं y का q नॉर्म. ऑल ऑफ दिस इज हैविंग दिस 1 नॉर्म.
ठीक। अच्छा, अब जरा ख्याल करें कि ये x अपान ये जो नीचे आ रहा है ये आपका u बन जाएगा, और ये y अपान ये जो आ रहा है ये आपका v बन जाएगा। सो आई कैन राइट दिस कि ये आपका u है, उसके साथ मल्टीप्लाई है x का p नॉर्म, और ये आपका v है, इसके साथ सॉरी दिस इज अ वेक्टर v, और इसके साथ मल्टीप्लाइड है आपका y का q नॉर्म और इसका वन नॉर्म। अब ये दो स्केलर हैं, ये और ये दोनों नॉर्म से बाहर आ सकते हैं, x विद p नॉर्म बाहर आ सकता है, y विद q नॉर्म बाहर आ सकता है, और आपके पास बच जाएगा uv का वन नॉर्म। लेकिन ये अभी अभी हमने ऊपर शो किया है कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ये पड़ा हुआ है। तो इसको अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ x का p नॉर्म y का q नॉर्म, सो यू कैन राइट दिस x का p नॉर्म and y का q नॉर्म, and this concludes the proof of Holder's inequality. So this shows कि x y का जो वन नॉर्म है it is less than equal to x का p नॉर्म and y का q नॉर्म। Obviously I am assuming कि x और y के नॉर्म फाइनाइट है, यानी ये p और q के अंदर है, x is in p, this LP and y is in LQ। कोई सवाल है तो पूछें, वरना यहाँ पर आपको होल्डर